Hello everyone, I welcome you all again in this video series in which we were discussing about the previously asked gate problem on the metal cutting. So till now in the previous 5 videos we have completed up to the problem number 17. So in this video we are starting with the problem number 18 onwards. Okay, so let's start. So in this 18 problem, a single point cutting tool of with 12-degree rake angle means the value of alpha is given to you. Okay, is used to machine a steel workpiece. Okay, now the depth of cut, that is we have to be assume it as is because it's given the uncut chip thickness. So the uncut chip thickness we always represent with the T. Okay, the chip thickness under orthogonal machining condition is 1.8 mm. So the value of TC is given to you. Okay, and what is asking the shear angle is approximately. So it's a very simple problem, that is we know the formula, that is tan phi equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha. So just to put the value, but we need the r, but r is equals to T by Tc, that is uncut chip thickness with respect to the chip thickness. So uncut chip thickness is given to you, that is 0.81, and TC, that is 1.8 mm. Okay, so when you will calculate it, what I am getting is I am getting the value of 0.45, okay, of the R. So just put the value, that is 10 pi equals to R, that is 0.45 into cos of alpha means 12 degree upon 1 minus R, that is 0.45 into sine 12 degree. Okay, so when you will calculate, what I'm getting is in numerator, that is 0.44017. Okay, in the denominator, that is 0.9064. So when you will calculate it, तो आपको मिलेगा that is 0.4856. Okay, तो ये जो वैल्यू है ये आपको मिल रही है tan phi की. ठीक है, तो इन्वर्स कर दीजिए. तो इन्वर्स करने पे आपको मिलेगा that is 25.9 degree. What I am getting is, so that is approximately 26 degree. Okay, so the option will be B. Okay, so it's a simple problem. Let's move to the next one. It's a very good problem, but for this you have to remember the formula. Okay, so in this problem, the detail pertaining to an orthogonal machining, जो machining हो रही है उसके बारे में आपको details दी हुई हैं. Values क्या क्या हैं? That is chip thickness ratio, that is value of R, that is 0.40. Undeformed thickness, that is undeformed means uncut chip thickness, so the value of T. The rake angle is alpha, that is plus 10 degree. Cutting speed, that is V, okay, that is 2.5 meter per second. Mean thickness of primary shear zone is 25 micron, means the value of TS, that is the thickness in the primary shear zone, so that is equals to 25 micron, means 10 raised to power minus 6 meter. Okay, so that is given to you. The shear strain rate in per second, okay, during the process that we have to find out. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये shear strain rate होता क्या है. ठीक है, जनरली हम लोग shear strain तो पढ़ते हैं, और shear strain rate जो है that is आपको यहाँ से थोड़ा यूनिट से अंदाजा लगेगा कि पर सेकंड में कैलकुलेट है. ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज स्ट्रेन रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन ऊपर उसके डॉट से, दैट इज वीएस अपॉन टीएस. ओके, जो ये वीएस है दैट इज shearing velocity and shear velocity, and ts is basically the shear thickness. Okay, or we can say it's a primary, whatever the thickness in the primary shear zone, so that is the value of ts. Okay, so the value of ts is given to you, that is 25 into 10 raised to power minus 6 meter. बट वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, जो शेयर जोन में वेलोसिटी है, बट उसके लिए आपको v की वैल्यू गिवन है, दैट इज कटिंग स्पीड. तो हमें कन्वर्जन पता है. ठीक है, तो कन्वर्जन क्या होता है, दैट इज v अपॉन cos ऑफ phi minus alpha equals to
आपका VC की टर्म में होता है दैट इज साइन फाई, और VS इसके नीचे होता है दैट इज कोस अल्फा। ठीक है, तो आपको क्या V गिवन है, क्या आपको फाई गिवन है? फाई हमें नहीं गिवन है, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे फाई। अल्फा आपको गिवन है, यस अल्फा गिवन है। VS हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले हम क्या करते हैं 10 फाई से जो ये फॉर्मूला है हमारा दैट इज 10 फाई इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा से हम लोग क्या करते हैं फाई फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो R जो है दैट इज चिप थिकनेस रेशियो, वो आपको गिवन है डायरेक्टली, सो जस्ट पुट द वैल्यू दैट इज 0.40 into cos alpha that is 10 degree, okay, upon 1 minus 0.40 into sin 10 degree, okay. Now जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमरेटर में जो आपको मिलेगा दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट इज 0.3939, और जो डिनोमिनेटर में मिल रहा है दैट इज 0.93054। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4233। तो ये आपको वैल्यू किसकी मिल रही है 10 फाई की, और यहाँ से जब 10 इनवर्स करेंगे तो फाई की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 22.94, ठीक है, डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई आपकी फाई की। तो आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन है पहला मैं इसको इक्विवेलेंट कर रहा हूँ इसके, ठीक है, क्योंकि हमें VS की वैल्यू चाहिए। So this will give you this V upon cos of phi minus alpha equals to VS upon cos of alpha। ठीक है, तो VS हमें कैलकुलेट करना है, तो V की वैल्यू कितनी है 2.5 मीटर पर सेकंड। So this is 2.5 into cos of alpha that is cos 10 degree upon cos phi that is 22.94 minus 10 degree। ओके, तो यहाँ से आपको VS की वैल्यू मिल जाएगी। तो VS आपको मिलेगा, जो मुझे मिल रहा है दैट इज 2.5262 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को मैं चेंज नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पे भी 2.5 ही था, तो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग इज 2.526 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो हो गया VS। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है स्ट्रेन रेट दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, so this is VS that is 2.5262 अपॉन, देखिए ये मीटर पर सेकंड में है और ये भी यहाँ पे मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया था पहले, तो आप सिंपली पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो दिस इज 25 into 10⁻⁻6। ठीक है, तो -6 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ ले आता हूँ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो क्योंकि सारे आंसर जो है वो 10⁻5 में गिवन है, ठीक है, तो आप इससे क्या करिएगा कि इससे 10 लेके इससे मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.0104 into 10⁻⁻, सॉरी, +5। ओके, +5। सो आंसर चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी। ओके, इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होता तो आप पूरा क्वेश्चन कर पाते। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप इस प्रॉब्लम को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देयर इज अ कंसेप्ट, उस फॉर्मूले के पीछे कंसेप्ट है, बट वो कंसेप्ट थोड़ा लेंदी है बिकॉज उसके लिए आपको पहले shear स्ट्रेस समझना पड़ेगा, देन shear स्ट्रेन समझना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है उसको। ठीक, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so a steel bar of 200 mm in dia is turned at a feed rate of this means capital D मान लेते हैं इसको हम लोग, और ये जो वैल्यू है दैट इज F। ओके, विद द डेप्थ ऑफ कट इज 4 mm। ठीक है, स्मॉल d की जो वैल्यू है आपको दैट इज 4 mm। द रोटेशनल स्पीड ऑफ द वर्क पीस इज दिस, सो कैपिटल N वैल्यू इज 160 rpm। द मटेरियल रिमूवल रेट, सो द MRR इन केस ऑफ द मेटल कटिंग जो आपका हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोग अगर वॉल्यूम जो लॉस्ट हुआ है इसको, क्योंकि ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला एक बार हम कर चुके हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल आ चुका है जिसमें मैंने बताया था कि ये किस तरह से होता है टर्निंग के केस में। क्योंकि यहाँ पे टर्निंग हो रही है तो F और D जो आपका फीड है और डेप्थ ऑफ कट है उसका यूज आएगा। ठीक है, इनटू अगर जो आपको अगर वॉल्यूम दैट इज रिड्यूस्ड व्हाइल द मशीनिंग। ओके, तो अगर ये कैलकुलेट करना फॉर अ सिंगल पास तो हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अगर 2 पास होते तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते n दैट इज नंबर ऑफ पासेस। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि आपको MRR पूछ रहा है दैट इज मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है, तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या हो जाएगा F into D into V। V is basically the velocity, cutting speed we can say। So आपको यहाँ पे V नहीं दिया है बट आपको N दिया है RPM। So V is equals to pi into D into N। तो
बस निकल जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्टली फॉर्मूला ही रख दीजिए, दैट इज एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.25, तो यहाँ से 0.25 into small d, that is depth of cut, so that is 4 mm into pi into d, that is diameter, so that is 200 mm. अब हमें mm क्यूब पर सेकंड में ही फाइंड आउट करना है, तो हम सबको mm में ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये 0.25 mm, this is 4 mm, this is 200 mm into rpm कितना है आपका 160, but rpm that is in per minute, so this is I am dividing over here, 60 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेट ही करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, और स्पेशली जो मुझे मिल रही है, दैट इज 1675.516, ओके। सो दैट इज mm क्यूब पर सेकंड, बाई 60 करके हम कन्वर्ट कर चुके हैं सेकंड में, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, ऑप्शन विल बी डी। इससे आसान प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम हम एक बार कर चुके हैं, तो हम इस वजह से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसमें। Two cutting tools are being compared for a machining operation, in which the tool life equation is given to you. पहला है आपका कार्बाइड टूल, तो उसके लिए आपको दो n की वैल्यू उसके लिए सेपरेट है, क्योंकि अलग अलग टूल है, और c की वैल्यू भी सेपरेट है, ठीक है। सिमिलरली आपका HSS टूल है, तो उसके लिए आपका c की वैल्यू है 0.6 एंड c की वैल्यू, सॉरी, n की वैल्यू है 0.6 और c की वैल्यू है आपका 200, ठीक है। तो दिस इज vt raised to 1.6 equals to 3000, ठीक है, और vt raised to 0.60, तो ये है आपका 200, ठीक है। Where v is the cutting speed and in meter per minute and the t is the tool life in minute. Carbide tool will provide higher tool life, okay. So मैं इसकी लाइफ को कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज c, और HHS है तो मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ, सिंपल सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो TC इसमें गिवन है, दैट इज कार्बाइड टूल लाइफ प्रोवाइड हायर टूल लाइफ इफ द कटिंग स्पीड इन एक्सीड्स, तो कितना होगा, मतलब कटिंग स्पीड की वैल्यू क्या होगी वहां पर, ठीक है। तो ये एक कंडीशन गिवन है, दैट इज TC इज ग्रेटर देन TH, ठीक है। अगेन हमें इस प्रॉब्लम को करना है, तो हमें V, क्योंकि हमें V की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो हमें V को एज इट इज रखना पड़ेगा सेम, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से, इससे जब मैं निकालूंगा तो TC की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। TC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3000 अपॉन V रेज टू 1 बाई 1.6, ठीक है। और ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ, क्योंकि 3000 रेज टू v, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1/6 को, 1/1.6 को, तो ये मिलेगा 0.625, ठीक है, जो मुझे मिल रहा है। और जो सेकंड इक्वेशन है आपकी ये वाली, जब आप इसको TH यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो TH मिलेगा 200 अपॉन v रेज टू 1/0.60, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.667। ये थ्री डिजिट तक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी 3 डिजिट है, तो माइनस करने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों TC और TH की वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है। तो यहाँ से जब इक्वेशन में रखेंगे, तो 3000 रेज टू 0.625 अपॉन v रेज टू 0.625 इज ग्रेटर देन 200 रेज टू 1.667 अपॉन v रेज टू 1.667, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को इधर डाल देता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो v की वैल्यू मिलेगी, दैट इज ग्रेटर देन, मतलब जो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, दैट इज 200 रेज टू 1.667 डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, ठीक है। जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगी, दैट इज 45, और इधर जो आएगा दैट इज 1.042, ओके। इधर जो मिल रही है दैट इज 45.985, ठीक है। तो पावर को रेसिप्रोकल कर दीजिए, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 45.985 रेज टू 1 डिवाइड बाय 1.042, तो यहाँ से v की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, दैट इज ग्रेटर देन 39.4095, ठीक है, दैट इज इन मीटर पर मिनट, ठीक है। तो 39.4, so option will be B. Let's move to the next problem. Okay, so इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं। दिस इज आस्क्ड, ये कॉमन डेटा प्रॉब्लम है, दैट इज आस्क्ड बाय IIT बॉम्बे,
और इस बार भी आईआईटी बॉम्बे ही कंडक्ट करा रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि कितना कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है हमें, ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। तो इन ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑफ अ बार, मतलब टर्निंग है, ध्यान रखिएगा टर्निंग है, ऑफ अ बार ऑफ diameter 100 mm diameter, तो कैपिटल डी हम कंसिडर कर लेते हैं, विद अ फीट दैट इज एफ वैल्यू इज गिवन टू यू दैट इज 0.25 mm per revolution, small d value that is depth of cut is 4 mm, and the cutting velocity of 90 meter per minute, so the value of v. It is observed that the main cutting force, इसको छोड़ दीजिए अभी, main cutting force is perpendicular to the friction force, okay, acting at a chip tool interface, okay. So the main cutting force is that is value of fc is given to you, that is main cutting force. Actually हम लोग जब टर्निंग करते हैं तो उसमें हम टेंजेंशियल फोर्स उसको बोलते हैं, जो मेन कटिंग फोर्स होता है, ठीक है। और जब आप उसका कन्वर्जन करेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग में, तो बोथ वैल्यूज आर सेम, ओके। कन्वर्जन किसका होता है, अगर रेडियल फोर्स हो या फिर फीड फोर्स हो, तो उसको हम थ्रस्ट फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, बट जो टर्निंग में टेंजेंशियल फोर्स होता है, दैट इज ओनली द मेन कटिंग फोर्स, ओके। सो व्हेन यू विल कन्वर्ट इट इनटू द ऑर्थोगोनल कटिंग, सो दैट विल बी इक्वल टू एफसी। सो यहाँ पर एफसी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1500 न्यूटन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्थोगोनल रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल, तो ऑर्थोगोनल रेक एंगल चाहिए। तो एक काम करते हैं, कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मैं एक आपको थोड़ा ज्योमेट्री समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, अच्छा पहले आप फॉर्मूला अगर लगाना चाहेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है ऑर्थोगोनल रेक एंगल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना तो फाई गिवन है ना ही बीटा गिवन है, आपको सिर्फ जो पैरामीटर्स होते हैं वो गिवन है, ठीक है, दैट इज एफ डी एंड वी, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, और उसके अलावा फोर्स आपको गिवन है। तो हम कैलकुलेट नहीं करते, तो हम कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ज्योमेट्री देख लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री जब हम देखते हैं तो टर्निंग में थोड़ा इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चूंकि हम एनी हाउ कन्वर्जन तो हम लोग ऑर्थोगोनल कटिंग में ही करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ऑर्थोगोनल कटिंग की थोड़ी सी ज्योमेट्री समझा देता हूँ। हालांकि आप लोग सब जानते हैं ये चीज, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के लिए ये बहुत जरूरी है। दिस इज चिप्स, दिस इज चिप, दिस इज टूल, दिस इज वर्क पीस, ठीक है। तो अब पहले कंडीशन देखते हैं, और एक मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ये जो आपका एंगल होता है, दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। ये आपका टूल चिप इंटरफेस है, ठीक है। और आप जो कटिंग करते हैं, आपका कटिंग जो फोर्स होता है, दैट इज एफ सी इन दिस डायरेक्शन, मतलब मैं इस डायरेक्शन में लिख सकता हूँ, दिस इज एफ सी, ठीक है, इस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है। Now, अब जो कंडीशन इसमें गिवन है, दैट इज द मेन कटिंग फोर्स, दैट इज एफ सी, इज परपेंडिकुलर to the frictional force acting at the tool chip interface. तो ये जो आपका टूल चिप इंटरफेस है, आपकी टूल चिप्स मूव होती है इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, आपका फ्रिक्शन, चूंकि ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है ओवर द टूल रेक सरफेस, तो आपका फ्रिक्शन एंगल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अब मुझे कटिंग इसी पोजीशन में करनी है, मतलब मैं कटिंग जो एफसी है उसको मैं हॉरिजॉन्टली रखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल ही रखना चाहता हूँ, तो अब इसमें कंडीशन जो गिवन थी कि दैट इज द कटिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स ये वाला है आपका। अब ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, ये आपका कटिंग फोर्स है। मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ और इसको परपेंडिकुलर कर रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन में गिवन है, ठीक है। दिस इज एफ, तो ये वाला जो एंगल होता है, दिस इज अल्फा, ठीक है। अब इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है यहां से हट के यहां पर आ गया, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर अल्फा 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि टूल की जो शेप है आपकी वो इस तरह की है, ठीक है। यहां से ये आपका टूल बना हुआ है, ये आपका टूल है, ठीक है। अब इस पे जो चिप आएगी वो इस तरह से आएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से चिप निकलेगी। अब इसमें आपका अल्फा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो पूछा गया पहले क्वेश्चन में कि ऑर्थोगोनल रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल इन डिग्री, तो ऑर्थोगोनल रेक एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री। तो ऑप्शन क्या अवेलेबल है, 0। सो ऑप्शन विल बी ए, ओके। कितना कैलकुलेटर चलाया आपने, अभी तक तो नहीं चलाया। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम में है कि नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट द टूल चिप इंटरफेस। ओके, तो अगेन मैं ये जो ज्योमेट्री कंसिडर करता हूँ, दिस इज, अभी आपका टूल इस तरह से है, ठीक है, तो मैं इसी तरह से बना देता हूँ। ये आपका टूल है, ठीक है, अल्फा 0 हो गया और ये आपकी चिप्स निकल रही हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज चिप्स, दिस इज वर्क पीस, नाउ दिस इज एफसी। ओके, सो पूछ रहा है कि नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट द टूल एट द चिप टूल इंटरफेस इन न्यूटन। नाउ अगर मैं अगर आपका इसमें क्या है ना कि मतलब अल्फा 0 हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स 0 हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स चूंकि अभी भी चिप्स वर्टिकल डायरेक्शन में निकल रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका वो इस डायरेक्शन में लगेगा ही, फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं हुआ है, अल्फा 0 हुआ है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लेते हैं, इस डायरेक्शन में, मींस नॉर्मल टू दी फ्रिक्शन। बट इसमें पूछा नहीं है कि नॉर्मल टू दी फ्रिक्शन है या कोई दूसरा फोर्स है, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। पहला तो एफसी इटसेल्फ इज अ परपेंडिकुलर टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और अगर मैं एफसी की बात ना करूं और सिर्फ एन की ही बात करूं, ठीक है, तो एन की वैल्यू, एन भी इसी डायरेक्शन में है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू एफ एफ सी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम, दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1500 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या अवेलेबल है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट द चिप टूल इंटरफेस इज दैट इज इक्वल्स टू 1500 न्यूटन। तो आपने कितना पेन चलाया, कुछ भी नहीं चलाना पड़ा। इसका एक तरीका और है, मान लीजिए कि अगर यहाँ से आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो n की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो n इन टर्म्स ऑफ एफ सी दैट इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, तो दैट इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। तो n इक्वल्स टू एफ सी दैट इज इक्वल्स टू 1500 न्यूटन। तो कितना पेन चलाया है इसमें, पेन तो चलाया है, लेकिन कितना कैलकुलेटर चलाया है, कुछ भी नहीं चलाया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रुक जाते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम द 23rd प्रॉब्लम ऑनवर्ड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।